Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in the last class, we have discussed about enterprise structure. What is the definition of enterprise structure and why actually we needed an enterprise structure, and what are the levels of enterprise structure. So all these things, we have already seen. So we know that the topmost level in any enterprise is a client. Okay, below to the client you'll always find company code. Below to the company code, you'll always find a plant. Below to the plant, you'll be having a storage location. Then you'll be having a purchase organization. Then you'll be having a purchasing group. So this is your structure. It's not like below to storage location there is always be a purchase org. Purchase org will be always act beside to everything, because you can I'll show you that PPT which we have discussed in the last class. So what will happen is like, so your org structure can be anywhere. See, so this is our org structure: client, company code. We have plants here and storage location. So you can't see anywhere your purchase organization here in this picture, because I can put my purchase organization at client level and I will call it as centralized purchasing. Okay. I'll keep that purchase org at plants. Okay. All these plants means I can call it as cross plant purchase organization. Okay. And I can assign one purchase organization to each plant. So I'll call it as plant specific purchase organization. Okay. So there are different kind of purchase organizations will be there. Okay. So, and also a standard purchase organization will be there, and as well as a reference purchase organization will be there. Those things we will discuss while we are configuring these things. Okay. So we always we should remember this is like, client is always the topmost level in your enterprise. Client is like an head office or a corporate group, you can say. Okay. For example, I'm always taking an example of a Tata Group, right? So client, I'll call it as Tata Group. Okay. Company code. Company code means Tata Group contains so many companies like Tata Motors is there, Tata Steel is there, Tata Projects is there, Tata Water is there, Tata Salt is there. So there are so many companies for there. So you can create any one company code, yeah, or you can create multiple company codes. So for our example, what I'm going to do is today we will be creating one company, and we can create two plants in that company. So okay, and in each plant we can create one storage location and two storage locations. Okay, we'll see that, and as well as we'll create a purchase organization also, and we can create a purchasing group also. Okay, so all these things, client, company code, plant, storage location, purchasing organization, purchasing group, all these things gonna configure today. Okay, so now I'm going to SAP. So most of you already got access to SAP, so it's not a big deal. You can able to log into this. So everybody everybody will be having a different kind of settings to log into this. So whenever you go and reach any guy to install SAP, he'll give you some instructions. You have to follow the instructions and you will get into the screen. Okay, this is your SAP easy access screen. So what you have to do here is, as I told you, you will be having a T code and as well as a path to create anything in SAP. Okay, so first thing, what I'm going to create now, Client. Client is already created. See, when I Company log name. into Company SAP, code, company code. it has shown it as 800. Okay, here in practice client it will always be 800, but when you go to real time, if you're in a real time, if you're going to install SAP for Tata Group or anything, the client number won't be 800. It will be 100, 120 or 200, 300 like this. That number will be given by your company only. Your project managers, the people will decide. You no need to walk into the client. Client will always be created initially in the initial discussions with that group. Then from where you will start working, from the creating of company code. Okay, so before creating company code, as I told you, you have to define that company. You have to create the company. Okay, company code means only code you'll give, you won't give any name. Okay, so you have to define a company. As I told you, below to the client there can be so many companies. Okay, it's not like I'll be having only company. I told you Tata Projects I have, TCS I have, Tata Motors I have, so I can have different companies. Okay, right? So now what I'm going to do is, first I'm going to create company now. The T code for this is OX15. What it is? OX15. All the enterprise structure things,
up to purchase organization, it will come, it will come with OX, remember, okay? OX 15 per company. So I'm entering that now. So when I enter, where you went now, you went into company code screen, company screen. So here see, company name has been defined here already. So many company names are there already. IDES, NGL, IDS, UAS, Denmark, Finland, all these companies have been already created company names, okay? So now this is your transaction code OX 15 directly. Okay. If I say you, because remember one thing, as a consultant, you're not going to create company or company code. Okay. Company and company code, all these things will be created by finance people, FI people. You're not going to create. Remember this. From where you will start create as a consultant, you're going to create from plant. So, sir, why we are doing it's from plant. So why can't we start from plant now? Why you're creating company means someone has to create company, because without company I can't go to plant. Okay, so we don't have any FI people here. FI also, so before that, before creating a plant, we should create a company code. But in real time, what will happen? There will be separate team who is going to create company and company code. Okay, remember this. So we are only starting with plant, storage location, purchase organ, purchasing group. If even WM people will be there, and they'll be sharing, like they'll say like, okay, we will create your plants. No, so you just create purchasing organization and purchasing group. So you can only create purchase organ, purchasing groups. They'll create your plant and storage locations. Okay, it depends on the company. Okay, it depends on your project. If your project manager says you, like, as a consultant, Aslam, you need to create this plant. Aslam, you need to create this storage location. Then you have to. Okay, so then now what I'm going to do is, this is a transaction. Okay, so transaction is OX 15. Everybody is familiar now. OX 15. OX 15. What will happen if I type OX 15 in that command box? You will go into company creation screen. Now I don't want to go T code, but I wanted to remember path, means you have to remember this T code always. All the configurations will be done in SPRO, SAP project reference object. In this only you are going to customize your project. Enter. Now click on this SAP reference IMG. Okay. Now I told you in the last class to go through all of them one by one. If you go through, you will understand what is there in it. Especially as I told you to go through this enterprise structure. And the second one is, I have told you to go through this material management. Okay. So now what I'm going to do is, now first I'm going to create company. So now I'm clicking enterprise structure. So here you have definition here. This documentation symbol is the right. If you click this documentation, you will find a documentation relevant to this definition. So each section contains this documentation. If you click on the documentation, you'll understand what you're going to do or what you have to do in this particular configuration. Okay. So now I'm clicking definition. In definition, actually, which consultant you are? You are a material management consultant, right? So if you go to what you can see here, you see only storage location, purchase organization. But we have to create company, right? As I told you, company creation is a part of finance team. Now we are not finance team people, but we have to go further, right? We have to, we have to create the remaining org structures, and as well as we have to create PO, GRs, and all these things. Means we need these values. So here in this session, we are only discussing about right? So but we are also configuring this FI part also. So now I'm going to this part, define company. So that clock symbol is your execute button. So now where I came now, this is your company screens, all the companies which have already created. Okay, so see here, how many digits can be a company code? It can be 4 digits. It can be up to maximum 6 digits. Remember, remaining company code can be only 4 digits. Plant can only be 4 digits. It may be like a numeric, it may be alphanumeric. So storage location again can be 4 digits. Purchase organization again 4 digits. Purchasing group can only be 3 digits. Okay. So now, so here, yes, so many companies has been already defined. If you can see here, okay, so many companies are there. So what company you want to create now? I'm going to choose new entries. I'm writing company here. Okay, so give me any name.
See, K-O-N-E. if we go Kone. back here, see, oh, one sec. If you go back here you have to give a number, and in the right side, you'll be having a company name. Okay. So that can be alphanumeric, that can be only numeric. Okay. It depends on you, whatever you need it. So choose anything. What do you want me to give here? Kone. K-O-N-E. Huh? K-O-N-E. K-O-N-A. N-E. Kone. K-O-N-E. What does this mean by? Because we are following Tata Group right now. Now It's a Kone company. Worldwide we have this. Okay, you want me to create Kone, but you can take this as your reference while you're creating, but I'll take it as a Tata Group only. Why? Because we are Sure. taking an example of that, so everybody can easily understand. Because in the last class also we have taken Tata Group as example. So what I can do is I can do Tata 1010. I can use, or I can say Tata 01. Okay, or I can use total numeric. Remember what I'm doing, 102030 I can use. Okay, so Tata Motors, what I'll do is like Tata Groups, right? Tata Groups, Tata G1. Okay, so this is the company which I'm creating, Tata G1. So company name, Tata Group or Tata Group. Is it fine? Okay. Company 2, if you have any descriptive name you want to give, so you can give here. Okay, so let's leave it as company name one only will give. So next, street, PO box, postal code, all this if you wanted to give, you can give. What is the street? If Tata Group lies in Delhi or Hyderabad, we can give that address. So I'll consider Hyderabad because I live in Hyderabad, so I can able to identify these things. So what I'll do is like I'll take a street as so Vijaya Nagar colony might be yes, Vijaya Nagar colony. PO box. So postal code, what is the postal code for PO Vijaya Nagar colony? It is 500001, I guess. City is your Hyderabad. Country is your India. See, when I'm typing this, you'll see a box here. Okay, you have a selection box here. Selection means you can able to choose multiple options here. You'll be having multiple things here. So among them, you wanted to choose your company. So you can't write India, total India there. IN you can type, see, for India, what you have, this IN is configured already. So if you type that, it can take IN here. Language key. What language you wanted to maintain? It's always English, right? So what options you have, you can go through here. If you wanted to maintain Urdu, you can. If you wanted to maintain Arabic, you can. So, but what we want is English here. So I'll be choosing English now. Okay. All right. PO box. It's in Lakdikapul, right? So Lakdikapul PO box. Okay. So currency. What currency do India holds? Is it okay? INR. If I'm creating a company of US, so see what currency you will be having is, or everybody is familiar with this. Indian rupee is your INR, which I have given already. So if I am not choosing any Tata Group here, if I may be choosing any other company like Amazon, Amazon UK, you will be having. Okay. So if I'm creating any companies of Europe or companies of US, that respective country currency, that respective currency city and postal code, everything you can give. Okay, this is what you need to do. So now I have created a Tata Group. You can note it down these values. Tata G1. So what I'll do is like I'll maintain these values here. Company name is Tata G1. We have created, right? Okay, then. So now what I'm going to do, I'm going to save this. Okay. So okay. See here, what is this? Can anybody can read this? Transport request, sir. Yes, it's a transport request. What is the use of this transport request? And I'll explain you. See, whatever the configurations or the customizations you do in SAP, so these all those customizations will be saved in a transport request. What is this transport request? See, if I wanted to move some goods, what I'll use some transportation medium. What my transportation medium? I can use my tempo, I can use a lorry, I can use anything, I can use a bike, I can use my car to move that goods. Whatever the data just you maintain, the data needs a transportation medium. I'll call it as a transportation request, TR.
Okay, that particular configuration, whatever the configuration I have done now, it will be saved into this request. The code, if you can see here, EH6K9002. This you can give the value in this kind of reference number. It will be saved in this kind of reference number, TR number. Later part, that TR number will be used to identify, will be used to move from one client to another client. Sir, why we need to move this TR to one client to another client? I'll explain you. See, what is happening is like SAP is a three-tier architecture. Three-tier architecture means you will be having, see, what will happen is like three clients will be there in SAP always. If any company you will choose, one is your development server, second is your testing server, and third will be your testing server or client. I'll say first is your development, second is your testing, third will be your production. Three clients you will be having always. Three clients means like 800 I have shown you, right? We logged into 800. Like this Tata Group will be having 100 as development client, means all the developments, all the configurations you will do in that 100 only. Remember. So Tata Group again will be having another client called 120. That will be also having the same credentials. So 120. Why 120 they'll use? 120 will be used for testing. Whatever the configurations you have done, you can move all these transport requests to this client to that client. You no need to create all these things again in that client 120. So what you are going to do is like we have a process to move this TR. That is another topic which we can discuss in the later part. But for this topic to understand is simply you need to save into one TR so that this TR can be moved in the later part to other client if needed. If you want to test this in test client, later part, you have to remember you can save this number and you can say, yeah, this is my TR where I have saved my org structure. I wanted to move this org structure. Can you do this? You're not going to do this changes, the moments. Basis guy, SAP basis guy will be there. That basis guy will do this movements, from you have to provide him this TR number. You have to say him like, yeah, yesterday I have configured a company for this Tata Group. So can you move this TR to development, testing or production server? So like this. So as I told you, you will be having three clients or three servers always. One is your development, second is your testing, last one is your production. When all the testing is done, what will happen is like all the things will be moved to production server. That production server is the one which a client will use. Client means the Tata people. You are a guy who are sitting in the software company, okay, consulting company. So you have configured SAP for them, but you can only configure SAP in development server. That is 100. Remember this. Remember you will be having three servers maybe. 100 is your development server, 120 maybe your test server, and then 130 or 140 maybe your production server. Okay. So in the later part, what you have to do is like when all the testings, all the configuration has been done, in the last stage of the project, you will move all these TRs to why I am saying TRs, because for org structure you will be having one TR, for master data you will be having one TR, for the rest of the things you will be having one TR. So you may be having different TRs which you have created where you have stored all your data. The TRs can be moved in the later part. Okay, remember this thing, right? Now I don't want to use this system given a specific name. I wanted to give my own request. So what I'm doing is like I'm creating my own request here. Sorry. So I'm creating this will generate the request will while saving this request will generate automatically. Yes, automatically request will generate, but it won't be moved to that client. If you wanted to move this to that client, you have to release it and you have to move it. We have two transactions called SE10 and SSE1. Those transactions we can discuss in the later part. So just at this stage, what you have to do is whatever the configuration you are doing, that you have to save. Like like if I'm working on any MS Word document in the system. So what I'll do after typing something, I'll save it. I'll save it in something C or D drive or C drive. I'll give you that a name. So similarly, whatever the configs you have done here, you have to give him a name. You have to choose that TR and you have to give an MC. I have chosen a new TR here. Okay, if you can see here, I'm giving a short description. What description I'm giving? See, org structure or enterprise structure. Okay, enterprise structure underscore who configured, me configured by Asghar. So what I'll do is like I'll give Asghar. Okay, so now I have given this. Okay, so I have given this here now, enterprise structure at underscore Asghar.
So this is what you have configured enterprise structure for whom, for Tata. That also you can give here. Okay, Tata underscore. Okay, now we can save it. Okay, so description I have given now. So it has taken a default value here request. Okay, EH6K90024. This won't be this will be given by SAP in standardized, but the description I have given. That means I can able to remember whenever I use this TR, I can able to remember, okay, this TR is belongs to enterprise structure. Okay, I'm clicking on this, check now. Okay, so data was saved. Now I have created this company. If you want to check that company, see here, TATAG1 Tata Group has been created. If you want to maintain any other name also, Tata Group Holdings or something, Tata Group INC or Indian company, whatever it is. If you want to give other name also, the second name also you can give it. Okay, so now that has been done. Is it fine? टाटा ग्रुप का नाम हम लोग यहाँ पे दिए, टाटा TA जीवन, उसका डिस्क्रिप्शन दिए, टाटा ग्रुप हम लोग दिए, उसका और एक नाम अगर देना चाह रहे हैं तो टाटा ग्रुप INC करके भी दिए हम लोग. ओके, सो नाउ आई एम कमिंग बैक. अब हो गया हमारा कंपनी क्रिएशन. ओके जी. Before moving to other topic, I have a question in this. Okay. You said the servers. What are those? Testing server, development server. एक रहता डेवलपमेंट जो हम लोग अब कर रहे हैं. समझो कि जितने भी डेवलपमेंट्स है, जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस है, वो पहला सर्वर में करते हैं हम लोग. डेवलपमेंट सर्वर में करते हैं हमेशा. डेवलपमेंट्स पूरे हो गए भाई. प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन अगर समझो कि 9 मंथ्स है, तो क्या होता है, फर्स्ट 3 मंथ जो है आप इस पे काम करते हैं, डेवलपमेंट में काम करते रहते, पूरा कॉन्फ़िगरेशन करते. पूरा करने के बाद क्या होता है, जब आपकी एक मेल आता है प्रोजेक्ट मैनेजर से कि भाई जितने भी आपके कॉन्फ़िगरेशंस आए सबको मूव करो टेस्ट क्लाइंट में, सो दैट हम लोग वहां पर टेस्ट करेंगे. जो भी आपकी टीम लीड्स रहते हैं या आप खुद रहते हैं या आपके टीम में कोई टेस्टिंग वाले रहते हैं, उन लोग क्या करते, जाके आप जो डेटा जो भी क्रिएट किए वहां पर टेस्ट करते हैं. वो लोग टेस्टिंग करने के बाद सबको समझ में आया कि भाई जो भी कुछ भी इश्यूज नहीं आए, बराबर कॉन्फ़िगरेशन हुआ, कुछ भी मसला नहीं है, तो क्या करते हैं उसको, देन उसको फिर बोलते हैं कि फिर और एक मेल आता है आपको कि चलो भाई अब जो है जितने भी आपके TRs है जो डेवलपमेंट में है या टेस्टिंग में है, दोस्त कैन बी मूव टू प्रोडक्शन. सो इसमें 2 टाइप ऑफ TRs रहते हैं. कुछ TRs कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रहते हैं जो आप मूव कर सकते हैं एक क्लाइंट से और एक क्लाइंट को, मतलब डेवलपमेंट से टेस्टिंग को, टेस्टिंग से प्रोडक्शन को. थोड़े कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होते हैं कि आपको हर क्लाइंट में जाके बनाना होता है. मिसाल के तौर पे नंबर रेंजेस बोल के रहता, वो आगे मैं समझाता हूँ आप लोगों को. ऐसे कुछ चीजें रहते हैं वो आपको हर क्लाइंट में जाके बनाना पड़ता है, उसको मूव नहीं कर सकते आप कहीं से भी. ओके, रिमेंबर दिस. सो अब कंपनी के अंदर क्या होता है, हम लोग अब जैसा कर रहे हैं वैसे ही करना पड़ता है. डेवलपमेंट सर्वर में आपको उन्हें बोलता, जब समझो कि आप प्रोजेक्ट में ज्वाइन करें, आप ज्वाइन करने के बाद आपको पूछने की जरूरत नहीं है भाई आप मेरे को डेवलपमेंट सर्वर दे रहे क्या दे रहे हैं बोल के पूछने की जरूरत है. इसके आपको पहले देता हूँ उन्हें डेवलपमेंट सर्वर का डिटेल्स देता. आपको डेवलपमेंट सर्वर बोलता है भाई 120 या 100 जो है आपका डेवलपमेंट सर्वर है, आपका यूजर ID ये है, पासवर्ड ये है बोल के आपको एक मेल आता. वो 100 या 120 जो भी है वो क्लाइंट में मारते आप, उसके नीचे जो है क्या करते हैं, यूजर ID पासवर्ड मारते, देन यू विल एंटर टू द क्लाइंट. अगर उन्हें आपका मैनेजर बोला भाई जाके क्लाइंट बना के दे मेरे को, एक कंपनी कोड बना के दे, या नहीं तो आप मेरे स्टोर लोकेशन बना के दे, देन यू आर कमिंग इनटू दिस ट्रांजैक्शन कोड. यहाँ पे आएंगे आप उसको बना के देंगे. मगर ये फाइनेंस का है, आप फाइनेंस वाले बनाते हैं, आप बनाने की भी जरूरत नहीं है. ओके, TR हर कोई बनाता, TR हर एक को सेव करना पड़ता TR में. और TR बनने के बाद हम बेसिस वाले को बोलते हैं कि भाई देखो मेरा TR में ऑर्ग स्ट्रक्चर पूरा यहाँ सेव करके रखा, आप जरा इसको मूव कर दो. Asghar bhai, what is the full form of TR? ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट. Okay, thank you. Client number development for development client environment 100 is the universal है कोड, मतलब वो नहीं भाई, मैं क्या बोला मिसाल दी आपको 100 सीरीज अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो 100 मेरा जो है डेवलपमेंट होता, 120 जो है क्या करता उन्हें टेस्टिंग का लेता, और जो है क्या बोलते 130 या 150 उन्हें क्या करता ये करता. या 100 अगर मेरा कभी भी जो है क्या बोल सकते, कभी कभी ऐसा भी होता कि 100 मेरा डेवलपमेंट सर्वर होता, 200 जो है टेस्टिंग सर्वर होता, 300 मेरा जो है प्रोडक्शन सर्वर होता. ऐसे भी होते प्रोजेक्ट. सो डिपेंड्स ऑन, तो क्लाइंट जो चाह रहा है वो नंबरिंग वो लोग देते हैं. वो लोग ये डिस्कशंस में आप इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है. आपके जो लीड्स रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग डिफाइन करते हैं क्लाइंट्स को. तो प्रोडक्शन क्लाइंट को क्या नंबर देना है, डेवलपमेंट को क्या देना है, टेस्टिंग को क्या देना है. और कोई सवाल है? लैंडस्केप भी बोल सकते हैं अजगर भाई. हाँ, लैंडस्केप भी बोल सकते हैं. ये जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट क्रिएट जो हो रहा है ना, उसको अपन फिर ओपन करके चेक करना है, तो कुछ टी कोड है क्या उसके लिए या पाथ? हाँ, उसको अपन चेक कर सकते हैं. देखो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं आपको बोला 2 टी कोड्स है यहाँ पे. SE10 एक है,
AC11 एक है, AC10 में क्या होता है बोले तो रिलीज करते हैं इसको हम लोग। अभी इसको रिलीज करने की जरूरत नहीं, कब रिलीज करना है ये अगर आपको बोल दिए कि भाई देखो जितने भी लोग जितने भी TRs आप क्रिएट करें उसको रिलीज कर दो, सो दैट बेसिस वाला आप क्या करता है टेस्टिंग को मूव कर रहा बोले तो जब यहाँ पे आते हैं आप AC10 में आते, देखो यहाँ पे जो है मैं कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट जितनी भी बनाया यहाँ पे क्या करता हूँ मैं डिस्प्ले बोल के बोल रहा हूँ मैं, यहाँ डिस्प्ले में देखो यहाँ पे कितने दिखा रहा है, यहाँ पे पूरे एक दिखा रहा है, यहाँ पे क्या बनाया देखो यहाँ पे मैं EHC के ये वाला था ना 90024800 SAP यूजर, मेरा नाम SAP यूजर है यहाँ पे, वहाँ पे अगर असगर दिया तो असगर बोल के आता, वहाँ पे असलम दिया तो असलम बोल के आता, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंटरप्राइज स्ट्रक्चर टाटा असगर यहाँ पे है, ये मेरा डेटा पूरा है इसमें स्टोर होके है, ये नंबर मैं उसको देता हूँ और बोलता हूँ देख मियाँ यहाँ पे मेरा ऑर्ग स्ट्रक्चर छुपा हुआ है, एक TR को जरा मूव कर दे तो ठीक है, ये हो गया अपना। तो अभी हम लोग को वहां पे जाना नहीं है, जस्ट हम लोग को फोकस कहाँ पे करना है, कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में मैं कहाँ गया था, पहले मैं गया था SPRO IMG, उसके बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, कहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ये वाला एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। So from here I went to the screen called definition, enterprise structure. So you will be having a definition and as well as assignment. I'll explain you why assignment is needed. We'll go into definition part first. In the definition, I went to financial accounting where I have created defined company. What company I have created? क्या था कंपनी का नाम भाई? टाटा ग्रुप, SAP का टाटा ग्रुप 6 डिजिट का था, टाटा जीवन, TATA जीवन था हमारा कंपनी का नेम। असगर भाई ये नेमिंग कन्वेंशन कुछ मतलब वैसा आपकी स्टैंडर्ड है क्या? मर्जी भाई, कैसा भी दे सकते हैं आप, टाटा नहीं देना चाह रहे हैं तो भी। डिजिट का 6 डिजिट है, कंपनी का 6 डिजिट है, कंपनी का 6 डिजिट, क्लाइंट का क्लाइंट का 3 डिजिट, क्लाइंट 3 800 200 300 Okay, 100 right. ऐसे बोल रहा हूं मैं, वो 000 तक कर सकते हो, ओके राइट। न्यूमेरिक रहता है 999 तक कर सकते हैं आप। ये Okay. प्लांट का 4 डिजिट्स, प्लांट प्लांट का storage कंपनी location? कोड का 4 डिजिट, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का 4 डिजिट, स्टोरेज लोकेशन का 4 डिजिट्स, लास्ट में जो परचेसिंग ग्रुप बना रहे हैं उसका एक 3 डिजिट्स आता, याद रखिए। तो दो ही चीजें डिफरेंट है यहाँ पे, एक तो कंपनी 6 डिजिट की है, परचेसिंग ग्रुप 3 डिजिट की है, बकाया जितने भी है वो 4 डिजिट के है। ओके, अब पहला मैं बना दिया डिफाइन कंपनी, ये क्रेडिट कंट्रोल एरिया ये सब अपन नहीं बनाते, ओके, इवन कंपनी पे अपन नहीं बनाते, मगर मेरे को रेफरेंस के लिए होना बोल के अपन बना रहे हैं। उसके बाद देखो क्या है भाई, कंपनी कोड भी बनाना है अपने, कंपनी के बाद स्ट्रक्चर में क्या था सेकंड वाला कंपनी कोड, ये भी अपन नहीं बनाते, FI वाले बनाते, मगर यहाँ पे FI नहीं है, कोई भी नहीं है, सो अपन बना रहे हैं यहाँ पे कंपनी कोड में क्लिक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ये है आपका पाथ। मेरे इसको टी कोड क्या है भाई, कंपनी को टी कोड क्या था जब से मैं कंपनी बनाया था भाई, कंपनी को टी कोड क्या था 0x15 सो OX15 था। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 0 नहीं था, O है, वो OX15 था। अभी कंपनी कोड के लिए क्या है भाई बोले तो आई विल गो बैक टू दिस नाउ, OX02, अगर कोई अच्छे से पढ़ लेगा है तो बहुत अच्छी चीज है भाई, OX02। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो सीधा सीधा कहाँ पे जा रहा हूँ, देखो मैं कंपनी कोड में चले आ रहा हूँ सीधा यहाँ पे। तो टी कोड्स अगर याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कम रहते भाई, ज्यादा भी नहीं रहते, पूरे जो है कंप्लीटली अगर मिला लेते 20-25 तक रहते, जो ज्यादा मैंडेटरी याद रखने के, बहुत सारे टी कोड्स है वैसे में इंपॉर्टेंट 20-25 रहते हैं, उसको याद रखिए आप लोग। तो OX15 OX02 अपने को याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन FI में नहीं बनाते, FI वाले बना लेते, तो इसका OX02 है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पाथ में जा रहा हूँ, देखो पाथ में जाना बोले तो क्या है, SPRO SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, उसके बाद SAP रेफरेंस IMG बोलो तो इम्प्लीमेंटेशन गाइड, जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करते, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंपनी मेरा बन गया, कंपनी कोड बना रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पे देखिए एडिट कंपनी कोड है, अगर ऑलरेडी बने हुआ है तो एडिट कर सकते हैं आप, अगर नहीं बनाना है तो एडिट डिलीट चेक कंपनी कोड, ये कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए। ओके, तो यहाँ पे आ गए अपन, तो यहाँ पे क्या क्या स्क्रीन है देखिए एक बार। पहला वाला क्या है देखो, डिस्प्ले और चेंज, उसके बाद क्या है, कॉपी। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी कंपनी कोड को कॉपी करना चाह रहा हूँ मैं, कॉपी बोले तो देखो यहाँ पे कैसा है, कुछ भी नया कंपनी कोड आप बना रही, सो कंपनी कोड को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे नया कंपनी कोड नहीं बना सकता हूँ मैं, कहीं को नहीं बना सकता हूँ, कंपनी कोड नया बना सकते हैं यहाँ पे, मगर उसके पीछे मेरे को क्या करना पड़ता है, जनरल लेजर वगैरह जो फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स है पूरे बनाना पड़ता है। कंपनी आप बना रहे हैं तो कंपनी खाली नहीं बनती, कंपनी के जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रहते बहुत सारे, तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अब मैं अगर नया कंपनी कोड बना दिया यहाँ पे तो पूरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनाते बैठना पड़ता, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी SAP में बहुत सारे कंपनी कोड बने हुए रहते, किसी एक का रेफरेंस लेके एक नया कंपनी कोड अपन बनाते, एक रेफरेंस लेके, तो उसके पीछे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन्हें पूरे डॉक्यूमेंट्स ले लेता। तो आप अपने को पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, खाली फ्रंट एंड में कैसा कंपनी कोड बनता है वो देगा। मैं कॉपी सेलेक्ट कर रहा यहाँ पे,
फ्रॉम से टू ले रहा हूँ, फ्रॉम बोलो तो क्या है, मेरे को यहाँ पे फ्रॉम बहुत सारे कंपनी कोड है, जो देखो यहाँ पे देखो सैप एजी है, बेस्टमन बेस्टरन है, यूके पोर्चुगल फ्रांस ये सब है, ये कंपनियां सिंगापुर के है, सबके है, मेरे को इंडिया का होना भाई इसमें रेफरेंस लेने के लिए। तो मैं नीचे ढूंढने जा रहा हूँ, देखो इंडिया का कहीं है क्या यहाँ पे, जिसका आप रेफरेंस लेके बना सकते हैं। रेफरेंस क्या को लेना भाई, मैं नया बनाया तो पूरे मेरे को डॉक्यूमेंट वगैरह जनरल वगैरह सब बनाना पड़ता है, सो आई कांट एबल टू डू दैट। तो एक का रेफरेंस मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, देखिए इंडिया मॉडल कंपनी ने क्या करता, हर कंट्री के लिए एक मॉडल बना के रखता। तो IN01 इंडिया का मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके IN01 ले लिए। आप कौन सा कंपनी कोड बनाना चाह रहे हैं भाई, कोई नाम बोलो टाटा के लिए, टाटा मोटर्स हम ले लिए, समझिए टाटा मोटर्स। ओके, एक नाम बोलो कंपनी कोड क्या बनाएंगे टाटा के लिए, TA01 बना दो कंपनी कोड, टाटा 01, TA01। और एक काम कर सकते हैं आप, टाटा मोटर्स 01, फाइन। खाली अपनी मर्जी भाई, कुछ भी रख सकते हैं आप। मैं टाटा मोटर्स क्या को रखता हूँ भाई, मैं मेरा नाम रख लेता हूँ, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी रख लो तुम। क्लाइंट को समझाना कि भाई देखो तुम्हारा नाम ऐसे रखा मैं कंपनी कोड का, कंपनी कोड देखो मैं क्या रखा, TM01 रखा, और यहाँ पे राइट मार रहा हूँ मैं। ओके, इन्हें क्या पूछ रहा है देखो, द रेफरेंस कंपनी कोड हैज लोकल करेंसी INR। तो तुम जो रेफरेंस ले रहे हो उसके कंपनी कोड का लोकल करेंसी INR है। तो ठीक है, क्या पूछ रहा है उन्हें, हाँ ठीक है बोला, डू यू वांट टू अलोकेट डिफरेंट लोकल करेंसी टू टारगेट कंपनी कोड। जरूरत नहीं है ना भाई, वो INR होना है हमको, नो बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये रियल टाइम में ये सब चीजें तुम नहीं करते एक्चुअली, बट देखो, डू यू रियली वांट टू ट्रांसपोर्ट नंबर रेंजेस, यस मारना है यहाँ पे। ये सब क्योंकि अपन नहीं बनाते हैं भाई, पूरा जो है अपन बैकग्राउंड नहीं लेके बैठ सकते, तो इसलिए हमेशा क्या करते हैं लोग, रेफरेंस ले लेते किसी का। आप लोग भी बना रहे हैं तो रेफरेंस ले लो। देखो यहाँ पे अब मेरा कंपनी कोड बन गया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सेव हो रहा है, देखो कहाँ पे सेव हो रहा है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर टाटा असगर जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ना, वो उसमें सेव हो रहा है, ये रिक्वेस्ट में सेव हो रहा, पूरे एक ही रिक्वेस्ट में सेव हो रहे। तो मेरे को लेटर पार्ट में क्या होता है, चेक करने के लिए या मूव करने के लिए ईजी होता मेरे को, ठीक है। सो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक कर दे रहा हूँ, वहाँ पे सेव हो जा बोल के। ओके 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 करो। जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे राइट मारते रहना, अपन ओके बोलते रहना, क्वेश्चन बोलते रहता उन्हें, क्लिक करते रहो, ओके मारते रहो, अंटिल आपका कंपनी कोड IN01 कॉपी टू TM01 ने क्या बोला, देखो IN01 के जितने भी चीजें थे पीछे बैकग्राउंड में, वो सब चीजें हमने TM01 को डाल दिया। इसका मतलब ये है कि भाई देखो, आपको एक नई बिल्डिंग बनाना है, आपके पास ऑलरेडी क्या था, बाजू वाली बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग का जीरोक्स मार के निकाल लिया आप, सीधे सीधा कैसी है कि वैसा कंस्ट्रक्शन वैसी ही करे, तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हम लोग जो बना हुआ डिजाइन था, जो स्ट्रक्चर था ऑलरेडी, उसका कॉपी कर लेके अपन एक नया कंपनी कोड बना लिया यहाँ पे, उसका नाम है TM01। आप लोग अगर नोट्स है आपके पास तो लिख लीजिए, मैं जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ TM01, बाद में कंफ्यूज नहीं आना, भूलने जाना है चीज़ों को, खाली प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ मैं। आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके खुद की कंपनी के नाम से बना लो। अब जरूरी नहीं है कि भाई असलम भी सेम एज फॉलो करना बोल के, असलम भी क्या कर सकते हैं, दूसरा कंपनी का नाम ले सकते हैं। जब से कोई दूसरा कंपनी का नाम बोले, अपने अपने खुद की कंपनी के नाम से बना सकते हैं। मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो फॉलो करना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी नाम लगा लो, आपकी खुद की कंपनी का नाम लगा लो या आपको खुद का नाम लगा लो, कुछ भी, ठीक है। अब मैं राइट मार रहा हूँ यहाँ पे, ओके। अब मेरा कंपनी कोड बन गया भाई यहाँ पे, ठीक है, कंपनी कोड बन गया, नहीं बन गया अब हम, ओके। नाउ आई एम कमिंग बैक, ओके। एडिट कंपनी कोड डेटा, अब बना दिया अपन ऑलरेडी, एडिट में जा रहा हूँ भाई मैं। अब एडिट में जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे पूरे कंपनी कोड कितने कितने बने हुए, सब यहाँ पे लिखे हुए ऑलरेडी। तो मैं इधर लास्ट में जाता हूँ, लास्ट में गए तो कौन दिखता होगा, हमारा दिखता होगा, जा रहा हूँ मैं लास्ट में। ये देखो TM01 इंडिया मॉडल कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी है, देखो TM01। इसका नाम अपन चेंज नहीं कर रहे थे वहां पे, यहाँ चेंज कर सकते हैं अपन। उसके बाद देखिए पोजीशन बोल के अपन पूरा नहीं ढूंढता हूँ मैं खाली मार लेता हूँ, बोले तो TM01 बोल के मार लेना, एंटर मारे तो वहाँ पे लेके जाता हूँ सीधा सीधा, ये TM01 आपका, ओके। इसको आप एडिट क्लिक कर सकते हैं, आए भाई हमारा TM01, सो TM01, लेट मी चेक 1 सेकेंड, मेरे को यहाँ पे नाम चेंज करना है इसका, टाटा ग्रुप बोल के। सो आई एम क्लिकिंग ऑन एडिट, नो एडिट नहीं ले रहा है ना, लेट मी चेक 1 सेकेंड। सो ये हमारा कंपनी कोड बन गया अभी। तो कंपनी कोड का मैं डिस्क्रिप्शन चेंज करने जा रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। सो एड्रेस,
Okay. So I'll come back again. I'm clicking on edit company code data. GM01 यहाँ पे सिर्फ मेरे को नाम चेंज करना है यहाँ पे. So what I'm gonna do is here. एडिट ऑप्शन नहीं ले रहा भाई यहाँ पे, क्या हुआ नहीं मालूम. बहरहाल लेट इट बी. यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये डिस्क्रिप्शन रहने दो, उसके बाद अपन देखेंगे क्या को चेंज हो रहा है. TM01 हमारा कंपनी कोड था, इंडिया मॉडल कंपनी बोल के. क्या को बोले तो उसकी कॉपी लिए ना हम लोग, इंडिया मॉडल कंपनी दिखा रहे हैं यहाँ पे. हमारा असल में क्या है, टाटा मोटर्स है यहाँ पे, टाटा मोटर्स आना था. सो दिस इज अ वे कंपनी कोड हमारा क्रिएट हो गया यहाँ पे. ओके, सो देखो TM01 को क्लिक करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिटेल्स चेक करना चाह रहा हूँ अगर क्या क्या है यहाँ पे. कुछ कहाँ पे सिटी कहाँ है, TM01 कंपनी का नेम ये है, और सिटी कहाँ है, बैंगलोर में है. कंट्री था इंडिया, करेंसी INR EN. मतलब ये टाटा मोटर्स का जो हेड ऑफिस कहाँ पे है, इसका मतलब सिटी हमारा बैंगलोर. ओके राइट. सो देन यहाँ पे चेंजेस ट्राई करिए. लेट मी चेक. नहीं हो रहा चेंजेस. ये प्रैक्टिस स्लाइड के थोड़े ऐसे मसले रहते हैं, फिर लॉगिन करने के बाद होता हो कभी कभी. ठीक है, तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे, जरूरी नहीं है अभी हम उसको डिस्कस करें. सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम उसके ऊपर. सो अभी हमारा क्या हो गया था, एक तो कंपनी बन गया, देन हमारा कंपनी कोड बन गया. इज इट फाइन. कंपनी का टी कोड क्या था भाई, OX15 था. कंपनी कोड का OX02 था, याद रखिए. और ये दोनों भी चीजें जो है हम नहीं बनाते रियल टाइम में, FI वाले, SAP FI वाले बनाते. आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे. तो उसके बाद देखिए, अब जो है मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ. अभी कुछ है कि यहाँ पे बनाने के हमारे को कुछ भी नहीं है. हम जो इंटरफेस स्ट्रक्चर पढ़े थे उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ तो है नहीं है, तो मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ. देन उसके बाद देखिए, अब हमारा लॉजिस्टिक्स जनरल, यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे आपका होने वाला क्या चीज है, देखो प्लांट दिख रहा है यहाँ पे. ओके, अब मेरा थर्ड लेवल क्या था, कंपनी कोड के नीचे क्या रहता है, हमेशा प्लांट रहता है भाई. प्लांट को देखो, बात ये है हमारा डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट. ये ओपन कर रहा हूँ मैं, क्लिक कर रहा तो ये ओपन हुआ. देखो डिफाइन प्लांट है, कॉपी डिलीट चेक प्लांट है, डिफाइन प्लांट फॉर क्रॉस सिस्टम गुड्स फ्लो. ठीक है, ये हो गया आपका क्या बोलते हैं पाथ. टी कोड क्या है भाई इसके लिए, प्लांट के लिए OX10. याद रखिए OX10. अब तक तीन टी कोड यूज करें अपन. पहला वाला OX15, दूसरा वाला OX02, तीसरा वाला प्लांट को जो है OX10. यहाँ से हम लोग करते एज ए MM कंसल्टेंट, यहाँ से आप लोग करते प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन MM से. MM का बंदा प्लांट से करता. तो ये आप देखिए यहाँ से कैसा बना रहे हैं अपन. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है भाई, डिफाइन प्लांट. क्लिक करो, मैं डिफाइन प्लांट क्लिक कर लिया. अब देखो यहाँ पे न्यू एंट्रीज, कॉपी भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे कॉपी कर लेके भी कर सकता हूँ किसी को ले लेके, या न्यू एंट्रीज बना सकता हूँ मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे न्यू एंट्रीज. प्लांट, कौन सा प्लांट बनाएंगे बोलो, यहाँ पे प्लांट का नाम बोलो भाई, कुछ भी प्लांट बोलो, नाम क्या देंगे बोलो. अब टाटा स्टील्स. 2 प्लांटा बना लेंगे अपन कंपनी कोड के नीचे. एक कंपनी कोड है हमारी, 2 प्लांटा बना लेंगे. कई को भाई 2 प्लांटा एक ही बना लेंगे ना बोले तो रहने दो भाई, 2 काम आते होंगे, आगे आगे देखेंगे. ओके, कई को काम आते हैं, आगे समझ में आता है आपको. मैं 2 बना रहा हूँ यहाँ पे. तो टाटा मोटर्स के जो है हैदराबाद में एक प्लांट हो सकता है, पुणे में एक प्लांट हो सकता है, चेन्नई में एक हो सकता है. तो हैदराबाद का एक ले लेंगे अपन रेफरेंस, और एक ले लेंगे क्या बोलते हैं तुम्हारा मुंबई का ले लेंगे. तो हैदराबाद के प्लांट क्या करता हूँ मालूम है, TH01 बोलता हूँ. ओके, टाटा मोटर्स हैदराबाद प्लांट 1. हैदराबाद में अगर और एक प्लांट भी बन गया फ्यूचर में तो TH02 बना सकता हूँ इजीली. तो ऐसा रेफरेंस के लिए बना ले रहा हूँ मैं, कैसे भी बना सकता हूँ. एक हैदराबाद का TH01 बना रहा हूँ, और एक मुंबई का TM01 बोल के बना ले रहा हूँ. अरे TM01 ऑलरेडी बन गया ना भाई वहाँ पे. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टाटा मोटर्स टाटा पुणे ले लेंगे क्या. सो बैंगलोर ले लो. टाटा बैंगलोर TB01. ओके, ऐसा ले लिया मैं प्लांट. चलो अब चलेंगे हम लोग वहाँ पे. we will go back to SAP now. यहाँ पे मैं प्लांट बना रहा हूँ. क्या था भाई प्लांट हमारा, TH01 नेम 1 टाटा मोटर्स हैदराबाद प्लांट, और एक नाम भी दे सकते हैं आप, टाटा प्लांट हैदराबाद में कहाँ है भाई. उन्हें अगर LB का क्या बोलते हैं हमारा हयात नगर में है तो हयात नगर बोल के मैं दे ले रहा हूँ यहाँ पे, हयात नगर कामा हैदराबाद. जरा और थोड़ा डिस्क्रिप्शन के लिए समझिए. नेम 1 सिंपल नेम समझिए, नेम 2 और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव समझिए. तो मेरी मर्जी, नेम कितने भी एक ही दे सकता हूँ या 2 दे सकते हैं, आपकी मर्जी. तो TH01 बना लिया मैं. ओके, अब देखिए कंट्री कोड. कंट्री कोड क्या है, यहाँ पे क्लिक करना. हमारा कंट्री कोड क्या है भाई, इंडिया का क्या है कंट्री कोड, IN
IN इंडिया का है, तो GHI के पास जाइए, कंट्री कोड हमारा IN है। यही चल रहा स्टार्टिंग में GHI। अगर आप ये नहीं भी स्क्रॉल करें तो डायरेक्टली वहाँ पे IN बोल के मार सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या बोलता हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, GH एस्केप, कंट्री कोड IN हो गया। सिटी कोड क्या है, हर सिटी को, हैदराबाद इंडिया में आपके हर सिटी के कोड है भाई, लाइक 26, 23, 24 ऐसे नंबर है, ठीक है। 01 से शुरू होता है, 01 शायद अरुणाचल प्रदेश भी, आंध्र प्रदेश को है। आप अगर देखेंगे तो सिटी कोड्स होते हैं SAP के अंदर जो है, हर सिटी को जो है, हर क्या बोलते हैं, हर स्टेट को ये कोड दिया उन्हें, ठीक है। वो कोड यहाँ पे चूज कर लेना अपन। लेट इट गेट लोड, ओके। कंट्री इंडिया के ले रहा भाई हमको, रीड इट फॉर इंडिया, डजंट एग्जिस्ट, इंडिया नहीं है यहाँ पे, इंडिया कंट्री कोड, इंडिया बने हुआ नहीं है ऑलरेडी। इंडिया नहीं दिखा रहा हूँ मुझे भाई। इंडिया कॉन्फ़िगर ही नहीं करे लोग। So, इंडिया का रेफरेंस कंपनी कोड प्लान दी हम लोग को, मगर दे हैवंट कॉन्फ़िगर्ड इंडिया। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, लेट मी चूज एनी अदर कंट्री कोड, लेट मी चूज एनी अदर कंट्री कोड, US। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, US ले लेंगे। US doesn't exist, what country could we have India? चलो भाई, कोई सा भी एक रैंडम ले लेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है, नहीं रैंडम वैल्यू, देखो जैसे यहाँ पे बोला, मैं आपको कंट्री कोड उन्होंने ले लिया रैंडम। यहाँ पे सिटी कोड आप कौन सा भी यहाँ पे जो है सिटी कोड है इसका ले सकते हैं, तो कौन सा भी चूज कर लो भाई, इसके अंदर का लेता नहीं लेता देखेंगे, सिटी कोड या ऐसा। तो जैसे आप कंट्री कोड देखिए, आपने अगर इंडिया के लिए है तो कॉन्फ़िगर अगर हो गया इसके अंदर, आप लोगों के पास अगर कॉन्फ़िगर दिखाता वहाँ पे कंट्री कोड, अगर अपन इंडिया ले लेते यहाँ पे, और जो है सिटी कोड जो रहता, वो सिटी का जो भी कोड है आपका, सिटी कोड वहाँ पे ले लेते। टैक्स जुडिक्शन कुछ कंट्रीज के लिए रहता, अपने को नहीं है, ठीक है। फैक्ट्री कैलेंडर, ये ऑप्शन क्या है ये देख लेंगे। फैक्ट्री कैलेंडर जर्मनी स्टैंडर्ड है, फैक्ट्री कैलेंडर जर्मनी से अरेंजमेंट ये अरेंजमेंट, कौन सा भी आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे, फैक्ट्री कैलेंडर ले लेंगे, जर्मनी स्टैंडर्ड को भी। चलो अभी कैसे भी हम लोग जो है टेस्ट डेटा ले रहे हैं यहाँ पे, सो वो देखेंगे इफ इट गेट्स सेव्ड, 203 doesn't exist, 3013, we will do one thing, we'll come back again in this, no, yes, lost the changes, so yes, what we will do is, अगर यहाँ पे कुछ इंडिया का रिलेटेड कुछ प्लान है क्या, लेट मी चेक, अगर है तो उसका डेटा हम लोग कॉपी करेंगे, इफ नॉट देन वी विल क्रिएट ए न्यू वन। भैया बेस्ट है, अगर भाई 1000 कंपनी कोड से क्रिएट करो। जी जी, 1000 कंपनी कोड से क्रिएट कीजिए। हाँ 1000 से करे तो अच्छा रहता, बेटर जी के। लेट मी चेक दिस, 1000 का ऑलरेडी देखो, 1000 के वैल्यू से जर्मनी के, सो हम इसका रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में एक्चुअली 1000 का लेते हैं, बट इंडिया का भी होना चाहिए कुछ भी रेफरेंस, कंपनी कोड में है, मगर प्लांट में दे हैवंट प्रोवाइडेड एनी रेफरेंस। डल्लास है, सिएटल, टोक्यो इंडिया, जेद्दा है सऊदी अरेबिया, दुबई है, अबू धाबी, सेंट्रो, आई डोंट थिंक वी हैव फॉर इंडिया। चलो ठीक है, इसका ले लेंगे अपन। यहाँ प्लांट बोलो, नाम क्या रखेंगे अपन, प्लांट क्या रखने वाले थे, TAH1 समझिए, यहाँ पे नेम है टाटा, टाटा प्लांट हैदराबाद,
यहाँ पे जो है टाटा प्लांट आपका जो क्या था, हयात नगर कुछ भी देना चाह रहे हैं यहाँ पे, हयात नगर हैदराबाद, या दिस डिटेल्स यू कैन गिव। सो चलो देखेंगे इफ इट इज गोइंग टू सेव द वैल्यूज। यहाँ पे देखिए टाइटल वगैरह पूछ रहा है यहाँ पे, लेट मी पुट इट डाउन। ओके सो यहाँ पे टाइटल देखो, टाइटल क्या है आपका, टाइटल कंपनी था ना, टाइटल हमारे यहाँ पे देंगे, टाइटल कंपनी। ओके नेम क्या था कंपनी का आपका, टाटा ग्रुप सिस्टम। सिस्टम क्या है ये, टाटा लग रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं आप सर्च कंपनीज को सर्च कर रही, सिस्टम अगर है आपके पास, टाटा बोल के मारे तो टाटा के जितने भी है वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, टाटा बोल के मार दो यहाँ पे। सो विल कीप ऑल ऑफ देम एज इट इज। ओके और थोड़ा आसान हो जाता है अपने। TAH1 क्रिएट हो गया, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सेव कर रहा हूँ अगेन। इफ आई सेव दैट कॉन्फिग वैल्यू, इफ इट इज सेविंग दिस TR अगेन, जो आपका पुराना TR था वही सेव हो रहा पूरा। तो ये हो गया आपका प्लांट। तो प्लांट तो बन गया भाई, पीछे आ रहे हैं हम अब। ओके सो क्लोज, प्लांट हमारा बन गया। अभी क्या बनाना है अपने को, द नेक्स्ट स्टेज इज क्रिएशन ऑफ स्टोरेज लोकेशन, Storage. मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट ए स्टोरेज लोकेशन। कौन सा प्लांट था भाई आपका, प्लांट में स्टोरेज लोकेशन कभी भी प्लांट के अंदर ही होता भाई, प्लांट है तो प्लांट के अंदर ही होता। तो व्हाट इज योर प्लांट, क्या था भाई हमारा प्लांट, H1. TAH1, एंटर मारो में। वो प्लांट के अंदर कितने स्टोरेज लोकेशन ना उतने बना ले सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे। सो अब यहाँ पे कुछ तो बन गया कि ऑलरेडी नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, न्यू एंट्रीज ले रहा हूँ। यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन क्या बनाएंगे भाई, स्टोरेज लोकेशन का नाम, स्टोरेज लोकेशन ESL01 बोल के लिख सकते हैं मैं यहाँ पे, या SL हैदराबाद का SLH1 लिख सकता हूँ मैं, कुछ भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी। सो फॉर माई कन्वीनियंस आई एम राइटिंग इट एज SLH1। स्टोरेज लोकेशन हैदराबाद का 1 है वो। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख रहे हैं आप के हैदराबाद स्टोरेज लोकेशन, या कौन से एरिया में है हैदराबाद में एक्सक्लूसिवली, समझो हयात नगर बोले तो हयात नगर लिख लो आप यहाँ पे, हयात नगर स्टोरेज लोकेशन, हयात नगर SLOC बोल के लिख लिया मैं। तो हयात नगर का स्टोरेज लोकेशन बोल के मेरे को मालूम होता डिस्क्रिप्शन देखते ही। यहाँ पे एसलॉक बना दिया भाई मैं। ओके बनाने के बाद एंटर मारो अभी। एंटर होने के बाद इसको क्लिक करिए आप लोग, ये लाइन का क्लिक करने के बाद व्हेन यू सेलेक्ट दिस लाइन, क्लिक ऑन एड्रेसेस। ओके कहाँ पे क्लिक करे थे हम, एड्रेसेस बॉक्स पे क्लिक करें, क्योंकि वो स्टोरेज लोकेशन कहाँ है उसका एड्रेस भी देना है हम लोग को। ओके एड्रेस देना है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, फिर आप न्यू एंट्रेस लीजिए, यहाँ पे नंबर 1 दबाइए। ओके नंबर 1 दबा के एंटर मारने के बाद ये एड्रेस का बॉक्स खुलता है। यहाँ पे जो है आपका स्टोरेज लोकेशन का टाइटल क्या है, उसका नेम क्या है, सिस्टम डिटेल्स वगैरह पूरे दे सकते हैं। टाइटल यहाँ पे देखिए आपका जो है कंपनी नेम है टाटा HYD एसलॉक, स्टोरेज लोकेशन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, कुछ भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, हयात नगर एसलॉक स्टोरेज लोकेशन, कुछ भी आप दे सकते हैं। सिस्टम में टाटा एसलॉक बोल के दे रहा हूँ मैं, मतलब टाटा का स्टोरेज लोकेशन, कुछ भी दे सकते हैं आप, आपका रैंडम है। ठीक है सो देन स्ट्रीट और हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम कुछ भी दीजिए, हैदराबाद का दीजिए, या हम लोग रेफरेंस जो जर्मन का लिए वो भी दे सकते हैं। देखेंगे इंडिया का लेके देखेंगे, अगर वैल्यूज ले लिया तो ठीक है। सो वी विल गिव द स्ट्रीट नेम, सो anything called LB नगर, is it fine? Okay पोस्टल कोड LB नगर का क्या हो सकता है भाई, 500017 हो सकता है, माइट बी। कंट्री हमारा हो गया इंडिया, और रीजन हो सकता है हमारा इंडिया के अंदर, मैं जैसे बोला आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे दिख रहा है, देखिए वहाँ पे अपने को नहीं दिख रहा था प्लान में, बट स्टोरेज लोकेशन में आपको दिख रहा है। देखिए 1 आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, 2 अरुणाचल प्रदेश। सो अपना कहाँ है भाई, तेलंगाना में है। तेलंगाना का नंबर कुछ है क्या यहाँ पे, राजस्थान है, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दामन डियू। ठीक है ये जब प्रैक्टिस क्लाइंट बना, जब तेलंगाना डिवाइड नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे आपको तेलंगाना नहीं है तो आपका आंध्रा में ले लो सकते। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ओके सो 01 मेरा रीजन हो गया। PO बॉक्स क्या भी देना है आप, LB नगर या कुछ भी, हयात नगर क्या भी देना दे सकते हैं। पोस्टल कोड आपका 500017 कुछ भी ले सकते हैं। कंपनी पोस्टल कोड, ओके फाइन। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ,
पोस्टल कोड 5017 मस्ट हैव द 6 लेंथ 500 और एक सोना का 000। ओके, ये देखो भाई आपका नंबर 1 बोल के सेव हो गया एड्रेस, स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस वहाँ पे सेव हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, फिर आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का रिक्वेस्ट पूछ रहा, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, सेम वही रिक्वेस्ट पे यूज करेंगे, देन विल से इट इज डन। अब आपका डेटा सेव हो गया। इफ यू कम बैक अगेन, अगर आप पीछे जाएंगे तो यू कैन सी योर स्टोरेज लोकेशन, थोड़ा पीछे आ जाएंगे आप। सो मेंटेन स्टोरेज लोकेशन में जा रहा हूँ मैं फिर अगेन। आप जो स्टोरेज लोकेशन बनाए उसको आप देख सकते हैं, ये कंपनी को आपका प्लांट है ना ये। ओके, दबा दिया भाई। आपके प्लांट में कितने बने हुए स्टोरेज लोकेशन है वो यहाँ पे दिखाता आपको। और एक बनाओ क्या यहाँ पे, एक बस काफी है आप लोगों को। अब आप लोग अगर और एक एग्जाम्पल लेते और एक बना दे सकते हैं यहाँ पे। हेलो सर। सर ये और आपका एक, कंपनी इंडियन रुपीस में बना बनाएंगे। है हाँ और बोलिए। प्लांट जर्मन में बना रहे, तो उसमें इनवॉइस या पीओ शेप बनाते वक्त इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर ये? इफेक्ट पड़े तो अपन करेंसी चेंज कर लेंगे आके। फिर अपन क्या है, असल में मैं ये चाह रहा था कि भाई पूरा हमारा कंपनी कोड कंपनी इंडिया से बने, मगर वहाँ पे कुछ वैल्यूज कॉन्फ़िगर नहीं है, तो अपन वहाँ पे जर्मन ले लिए चलता। मगर आप रियल टाइम में जब बना रहे हैं तो कंपनी वाला जर्मनी का रहता है, या नहीं तो जो है यूएई का रहता है, या नहीं तो जो इंडिया का रहता है, तो इंडिया के वाले से पूरे लेंगे। वहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर रहते, क्योंकि वो नया लेटेस्ट वर्जन रहता है, उसमें सब रहते। यहाँ पे जो है अपन प्रैक्टिस क्लाइंट यूज कर रहे हैं। अब तेलंगाना देखो, तेलंगाना इसमें नहीं था, मैं आंध्रा पिक कर लिया, तो कुछ डेटा यहाँ पे नहीं है, खाली प्रैक्टिस डेटा रहता। कुछ भी रैंडम डेटा मैं चूज कर लेके बना रहा हूँ। अब देखना क्या है, हमारे को प्रोसीजर देखना है, कहाँ बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या क्या वैल्यूज देना है, किधर किधर बना रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। अपन अपन करेंसी क्या दे रहे हैं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अपन खाली रैंडम टेस्ट डेटा ले रहा हूँ। मैं रैंडम ऐसा ले रही है अपन। ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। और एक अगर हैदराबाद लोकेशन बना रहा हूँ तो देखो, इसको सेलेक्ट करके मैं कॉपी करके सेम सेम डेटा ले सकता हूँ, या न्यू एड्रेस बना सकता हूँ। देखिए, न्यू एड्रेस बोले तो क्या होता है, नया फ्रेश फिर एड्रेस वगैरह देना पड़ता है मेरे को। ये अगर मैं सेलेक्ट कर लेके यहाँ पे दो कॉपी अगर बना दिया, तो उसका रेफरेंस ले लेता, 1 घंटे चूज कर लेके, फिर अपन क्या करता हूँ वो वैल्यू से क्रिएट कर सकते हैं, नया बनाना है तो ठीक है। देन आई विल गो बैक अगेन। सो ये हो गया हमारा सोर्स लोकेशन। हमारे पास ऑलरेडी 10 बज गए शायद। सो हम लास्ट वाला परचेज ऑर्गेनाइजेशन बना देता हूँ, बता देता हूँ मैं। देन उसके बाद रिमेनिंग फिर कल देखेंगे। कल एक बार मैं रिपीट भी कर सकता हूँ अगर चाहिए तो, या हम लोग ऊपर ऊपर से देख भी सकते हैं। सो देन मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए टी कोड क्या है भाई, परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो OX08 याद रखिए। स्टोरेज लोकेशन के लिए OX09 और परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए OX08। ये तीन इजीली याद रहता है। वो प्लांट OX10 है, स्टोरेज लोकेशन OX9 है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन OX08 है। ये तीन चीज याद रखिए, ठीक है। ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन बना दे के यही नोट दीजिए। ओके, ये कंट्रोलिंग एरिया क्या रहता है? क्या बोले? यूट्यूब पे वीडियो कंट्रोलिंग एरिया क्या रहेगा? मैं कंट्रोलिंग एरिया यूट्यूब अपन पे बनाने की जरूरत वीडियो नहीं है देख भाई। रहा था तो वो जो अगेन फिको वाले बनाते फाइनेंस, SAP फिको वाले बोलते हैं अपन। SAP फिको वाला क्या करता, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग वाला, फाइनेंस की कंपनी कोड कंट्रोलिंग एरिया ये सब बनाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या फाइनेंस रहता भाई वो? जितने भी ट्रांजेक्शन है फाइनेंस रिलेटेड, ये सब जो है आपका जो है फिको वाला बनाता। कंट्रोलिंग एरिया जो है एक मतलब एक फाइनेंशियल एरिया है, जिसके अंदर जो है उसके एंट्रीज होते हैं, जनरल एंट्रीज वगैरह होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं। ओके, सो अपने को इसका डिस्कशन जरूरत है, कंट्रोलिंग एरिया, ठीक है, कंट्रोल एरिया। अब देखेंगे हम जो है हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारे पास टाइम हो गया ऑलरेडी। ये एक फटाफट जो है बता देता हूँ मैं आप लोग को। परचेज ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अगेन अगेन आप कुछ भी यहाँ पे अगर ऑलरेडी बने हुआ है तो जो है उसको ले सकते हैं अपन। और अगर अपन नहीं देखे, अगर नहीं बोले तो न्यू एंट्रेंस ले सकते हैं। मैं न्यू एंट्रेंस ले लिया यहाँ पे। ओके, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या रहता है भाई, हमेशा परचेजिंग करता है। नहीं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का मेन क्या रहता है, परचेजिंग करता है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पर क्या रहता है, सेल्स वाले बनाते हैं। फिर वो क्या है, सेल्स के जितने भी एक्टिविटीज है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाता, ठीक है। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो देन ये फिको के रिलेटेड जो भी है, कंपनी कोड है, कंट्रोलिंग एरिया है, सब जो है उनके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, या नहीं तो जो है उसकी कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स के लिए, इसके रिलेटेड जो है जो भी है वो FI वाला देखता हो। तो अपने को जरूरत नहीं कंट्रोलिंग एरिया बनाने के लिए। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स वगैरह सब जो है कंट्रोलिंग एरिया में होते। सो नाउ परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या नेम देना है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का आपका मर्जी कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। सो IN इंडिया का परचेज ऑर्गेनाइजेशन, या टाटा का देना है, टाटा TIN परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1 भी दे सकता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रही, टाटा टाटा परचेज ऑर्ग। ओके, टाटा का परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन 1। ओके, अब इसको मैं एंटर करूँ।
ये हो गया एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन। और एक बनाना चाह रहे हैं तो और एक भी बना सकते हैं, कितने परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, आई एम सेविंग इट नाउ। ये अगेन रिक्वेस्ट पूछ रहा आपका, ये हो गया आपका परचेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोले थे आप, इसका यूज क्या बोले थे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन? परचेजिंग करता भाई, जितने भी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर परचेजिंग एक्टिविटीज है वो परचेज ऑर्गेनाइजेशन करता। तो जैसे आपका सेल्स डिपार्टमेंट रहता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट रहता है, वैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट या परचेजिंग डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है आपकी कंपनी में, या पूरे प्लांट्स को मिला के एक ही चाह रहे, तो एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं अपन। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन का मेन क्या रहता है बोलते, परचेजिंग एक्टिविटीज जितने भी है वो प्लांट के या कंपनी कोड के, तो उन्हें करता। अब वो कंपनी, अभी ये प्लांट को लेके, ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन लेके जाके अगर मैं एक कंपनी को असाइन कर दिया है कंपनी कोड को, तो कंपनी कोड के नीचे जितने भी प्लांट्स है वो प्लांट्स को उन्हें परचेज कर सकता। अगर मैं कंपनी कोड को नहीं करके सिर्फ एक प्लांट को असाइन कर दिया, लेके जाके असाइन कर दिया, असाइनमेंट नेक्स्ट है, वो हम लोग कल देखेंगे, कल की क्लास के अंदर। तो Okay. असाइनमेंट जब करते हैं आप, तो असाइनमेंट अगर मैं प्लांट को बना दिया तो वो प्लांट के हत्ते को उन्हें परचेजिंग कर सकता है। दूसरा प्लांट अगर है हैदराबाद में 2 प्लांट है, या हैदराबाद में एक प्लांट है, मुंबई में एक है, तो मुंबई के प्लांट को नहीं करता उन्हें, सिर्फ उन्हें हैदराबाद के प्लांट को करता। तो दिस इज व्हाट प्लांट स्पेसिफिक परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बन गया आपका परचेज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर प्लांट, राइट? हाँ, परचेज प्लांट। अब देखो भाई, यहाँ पे मैं बैक आ रहा हूँ, परचेज ऑर्गेनाइजेशन में फिर जा रहा हूँ मैं। हमारा बनाया हुआ कहाँ है कि ढूंढने नहीं होता मेरे से, बोलते ये पोजीशन क्लिक करो, आपका मारो, क्या बनाए थे अपन, TIN1 था ना। देखो यहाँ पे आ गया आपका टाटा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा अपन बना लेना, और एक बना लेता, और एक भी बना लीजिए। तो यहाँ तक जो भी हुआ आप लोग क्या करिए, आपके सिस्टम में प्रैक्टिस का मतलब बनाइए, आपको जो भी एरर्स आता फिर अपन कल देखेंगे, वो एरर्स भी देखेंगे। उसके बाद अपन क्या करना नेक्स्ट, परचेजिंग ग्रुप एक बनाना है। परचेजिंग ग्रुप बना देने के बाद आप जितने भी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स बना दिए, एक पे एक लिंक करना पड़ता है आपको, कंपनी कोड को कंपनी से, कंपनी कोड को प्लांट से, प्लांट से परचेज ऑर्गेनाइजेशन को लिंक नहीं करे तो जो है वो वैसे ही पड़े हुए रहते, क्योंकि कितने के सारे कंपनी कोड से, कितने के सारे प्लांट से, कौन सा प्लांट किसको परचेस करना, कौन सा प्लांट किसी कंपनी कोड लिंक करना, तो रिलेशन नहीं है उन लोगों के बीच में। उन लोगों के बीच में रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपको असाइन करना पड़ता है एक दूसरे को। सो वो असाइनमेंट टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। सो आज हम लोग डेफिनेशन देखे, कल हम लोग असाइनमेंट देखेंगे। इसके साथ भी और कुछ भी सवाल है तो हम लोग कल देख सकते हैं। तो कल तक क्या करिए आप, मैं जैसे करा ऐसे टी कोड यूज करो या पाथ यूज करो, बनाओ आप लोग। अगर इंडिया में आप लोगों के पास बन रहा है कंपनी कोड तो बनाओ सब लोग कंपनी कोड, प्लांट वगैरह सब। अगर नहीं बन रहा है तो 1000 हमेशा रेफरेंस है भाई। 1000 हमेशा क्या करते हैं, जितने भी लोग प्रैक्टिस करते रहते या जो ट्रेनिंग देते रहते हैं, उन लोग 1000 को रेफरेंस लेते। 1000 जो स्टार्टेड है जो प्रैक्टिस क्लाइंट के लिए, वो 1000 का जो जर्मनी का कंपनी का रहता है SAP का, तो वो रेफरेंस ले लेके आप कंपनी कोड, प्लांट्स वगैरह सब बना सकते हैं। तो ये आप लोगों के विषय, आप लोग देखिए मल्टीपल करिए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रैक्टिस करते रहिए। कोई UAE का लीजिए, कोई जो है रशिया का लीजिए, देखिए अगर बन रहा क्या, देखिए बन रहा तो अच्छा है। ठीक है, कोई सवाल है जो ये मैं इम्पोर्टेंट? आज इंस्टॉल करा हूँ ये सैप असगर भाई। ओके, तो इसको लॉगिन कैसा, वो सैप मैनेजमेंट एक है इसमें आइकॉन, एक नहीं सैप लॉग ऑन बोल के 2 आइकॉन्स है इस पे। तो इस पे मैं जाके लॉगिन कैसा करूँ वो, मतलब सैप मैनेजमेंट में गया हूँ, इस पे DA EH6 ये पूरा बता रहा हूँ, कंसोल रूट में है पूरे। इस पे राइट क्लिक करके स्टार्ट बोला हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। असल में मेरा जो है सिस्टम ऑफ हो गया, तो इसलिए वहाँ डिस्कनेक्ट हो गया जी। ओके ओके। सवाल था किसका, बोलिए, कुछ सवाल था? हाँ वही सैप मैनेजमेंट और सैप लॉग ऑन बोल के 2 आइकॉन्स है इसमें, मैं इंस्टॉल करा हूँ आज लैपटॉप पे। जी जी जी, हाँ तो उसके बाद मैं सैप मैनेजमेंट में गया हूँ, उस पे यूजर नेम भाई, ये पासवर्ड जितने भी स्टेप्स है ना, मैं आप लोगों को बोला कि मेरे जो स्टेप्स है वो आप लोगों के नहीं हो सकते इक्वली। ये सब चीज़ें जो कंपनी में भी नहीं करते अपन, खाली ये प्रैक्टिस क्लाइंट के लिए अपन बार बार करना पड़ता। मगर ये जो स्टेप्स आप बोल रहे हैं, ये स्टेप्स आप जैसा इंस्टॉलेशन जहाँ पे कराए थे उसके पास स्टेप्स उन्हें क्या करता, लिख के देता उन्हें, मैं तो एक वीडियो बना के देता आपको, वो स्टेप्स फॉलो करना, वो स्टेप्स फॉलो करके आप करना। क्योंकि आपका जो सर्वर है वो मेरे सर्वर से अलग हो सकता है, मेरे पास अलग प्रोसेस होता है लॉगिन करने के लिए, आपके पास अलग हो सकता है लॉगिन। ठीक है, आपके पास कॉमन क्या होता है, हमेशा सैप के 2 देता उन्हें आइकॉन से, एक था सैप मैनेजमेंट कंसोल बोल के रहता, दूसरा रहता SAP लॉगिन का रहता है। SAP लॉगिन का पहले नहीं ओपन करते अपन, वो मैनेजमेंट कंसोल बोल के रहता है, उसको पहले आप ओपन करते, क्या होता है वहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखता है SAP का बोल के, SAP दिखता है, उसके नीचे EHP 6 या 7 कुछ भी रहता, उसको राइट क्लिक करके स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के बाद राइट साइड में कुछ आइकॉन्स आते रहते हैं, वो आइकॉन्स जो है येलो में रहते हैं या नहीं तो कुछ भी कलर में रहते हैं, ऑरेंज में, वो आइकॉन्स जो है ग्रीन होने तक वेट करना अपन, नॉर्मली ऊपर रिफ्रेश करते रहना। ग्रीन होने के बाद फिर SAP लॉगिन स्क्रीन में वापस जाके अपन आप क्रेडेंशियल्स मारे तो जब लॉगिन होता, तो ये यूजुअल प्रोसेस है। तो ये क्या है, जो ऑनलाइन एक्सेस ले रहे हैं उन लोगों के लिए अलग अलग हो सकता, एक अलग अलग जो इंस्टॉलेशन कर रही
VMware में कर रहे हैं तो वो अलग प्रोसेस रहता, या अलग सिस्टम से कर रहे हैं वो अलग रहता। तो ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं जो भी लोग, अगर आपको उसके बारे में डाउट है तो उसी से पूछना, जो इंस्टॉलेशन करा उसको जरा कॉल कर लेना, अपन कॉल कर लेके पूछ लेना, भाई देखो मैं यहाँ पे स्टक हो गया, ये कैसे करना है, बोले तो उन्हें बोल देता। ठीक है, उस पे जाके यूजर नेम पासवर्ड भी वो नहीं बोलता पूरा ही देता, installation? यूजर पासवर्ड वगैरह सब, अपन कुछ भी मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता कुछ भी। अगर मैं इंस्टॉल करा बोल तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि इंस्टॉलेशन जो है जितने भी लोग हैं ऑनलाइन करते हैं एडमिन वाले। और कंपनी में भी, आप कंपनी में जाने के बाद भी आपका सिस्टम में ऐसे भी कौन इंस्टॉल करता है बोले तो आपकी कंपनी में एक टीम रहती है, IT टीम वाले करते हैं, आप नहीं करते वहाँ पे, उन्हें इंस्टॉल करके सॉल्व करके, ये कंसोला उनसोला कुछ भी नहीं रहते वहाँ पे, सीधा सीधा क्या करना है, ऐसे भी ओपन करके क्रेडेंशियल मारने का रहता है वहाँ पे रियल टाइम में। अब ये प्रैक्टिस क्लाइंट है ना भाई, यहाँ पे नखरे बहुत रहते हैं आपको कंसोल में जाके, वो क्या है खाली प्रैक्टिस सर्वर है, यहाँ पे जाके पहले वो 10 मिनट 5 मिनट लगते हैं आपको कंसोल जो है वो ग्रीन में आने, उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, SAP को लॉगिन कर सकते हैं। तो ऐसा होता है हमेशा। तो ये जो जो SAP जिसके पास इंस्टॉलेशन करा लिए उससे प्रोसेस पूछना ना, कभी भी जो है उन्हें क्या करता है, एक नोट रखता, डेस्कटॉप पे रख के देता, वो नोट में लिखे हुआ रहता स्टेप्स क्या है भाई, वो स्टेप्स फॉलो करके करना। तो कहीं कहीं समझ में नहीं आ रहा आपको, लॉगिन का कहीं फेल हो रहा है तो उसको फोन करके बोलना, भाई देखिए यहाँ पे मैं स्टक हो रहा हूँ, बोले तो उन्हें बोलता अरे भाई उसके बाद वो क्लिक करो, ये क्लिक करो बोल के, तो वो हिसाब से करो आप लोग। तो आप नॉर्मली कंपनी में जाने के बाद इतने मसले नहीं रहते पूरे, ये क्लिक करना वो क्लिक करना, सीधा सीधा लॉगिन की स्क्रीन रहती। जब ऑफलाइन रहता तो मैं लैपटॉप में दिखा सकता हूँ रियल टाइम में आप लोग कैसे रहता, खाली लॉगिन स्क्रीन SAP का रहता, क्लिक करना, वहाँ पे क्लाइंट नंबर मारना, क्रेडेंशियल मारना, खत्म हो जाता। और कोई सर सवाल? जी, ये SAP का स्क्रीन कैसा इंक्रीज कर सकते हो भाई? आइकॉन स्क्रीन छोटे स्क्रीन साइज कैसा इंक्रीज कर सकते हो? सेटिंग्स में रहता, देखिए वहाँ पे मेनू सेटिंग्स में रहता, आपको सेटिंग्स में आइकन को वगैरह चेंज कर, VMware में कर रहे हैं आप, कहाँ पे कर रहे हैं? VMware में। VMware में देखो भाई, वही सेटिंग्स में रहता है VMware में। VMware के सेटिंग्स में चेक करो एक बार, कहीं जूम अगर ऑप्शन है, क्योंकि मैं भी नहीं देखा VMware का, चेक नहीं करा। तो मैं जो है अलग सर्वर में, मतलब पैरेलली 2 OS चला सकते हैं आप, मैं पैरेलल OS में चला के यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग क्या करो, वहाँ पे VMware में देखो, वहाँ पे कई सेटिंग्स रहते, उसको यूज करके जो है उसको जूम इन करना, जूम आउट करना, बहरहाल वही रहता, कहीं भी चेक करो एक बार सेटिंग्स में। अगर नहीं बोले तो कल स्क्रीन शेयर करे तो मैं दिखा सकता हूँ, स्क्रीन शेयर करे तो बता सकता हूँ भाई आप लोगों के स्क्रीन पे क्या क्या है बोल दीजिए, क्योंकि एक एक काइंड ऑफ सिस्टम यूज कर रहे हैं, कोई आप VMware यूज कर रहे हैं, मैं जो है ड्यूल OS यूज कर रहा हूँ, तो मल्टीपल स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। अजर भाई, जी एक क्वेश्चन मेरा है, लाइक जैसा कि डिफरेंट ओएस पे डिफरेंट टाइप SAP इंस्टॉल करने के बावजूद जो है ना डिफरेंट पोजीशन से लॉगिन करना पड़ता है, क्या बोल रहे हैं अब, जैसा कि हाँ विंडोज 8 है या विंडोज 10 है, अब किसी के पास विंडोज 7 है, तो हाँ, SAP का सॉफ्टवेयर एक ही रहेगा ना? SAP तो SAP का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा हाँ वो तो सॉफ्टवेयर एक सेम ही रहता है भाई, ना, तो सबके पास इसमें आइकॉन सेम रहते, सबके पास जो चीजें दिखाता उन्हें सब सेम दिखाता। ठीक है, तो फिर लॉगिन में क्यों ऐसा डिफरेंस आ रहा? नहीं लॉगिन का प्रोसेस भाई देखो, लॉगिन में डिफरेंस क्या भी नहीं आता, लॉगिन से पहले जो चीजें करते हैं ना अपन, देखो भाई मेरे पास विंडोज 10 रहता, तुम्हारे पास 8 रहता, और किसी पास 7 रहता, 7 का लॉगिन का तरीका अलग है, 8 का लॉगिन का तरीका अलग है, 10 का अलग है, अलग अलग हो सकते हैं भाई। एक एक फोन में एक एक काइंड ऑफ OS रहता, देखो मेरा एसएस फोन है, समझो कि आपका एप्पल फोन है, एप्पल फोन में एक अलग तरीके से व्हाट्सएप चलता, जूम चलता, तो एक एक मतलब कस्टमाइज करके रहते हैं ना, तो वो हिसाब से जो है ट्रेनर अपने हिसाब से इंस्टॉल करते भाई वो। तो वो स्टेप्स जो है लॉगिन करने का तरीका, उन लोगों के पास जो स्टेप्स लिखे हुए रहते हैं वो स्टेप्स फॉलो करके लॉगिन करना। आप लॉगिन करने के अच्छा बाद हर तो एक को सेम रहता, उसको अलग इसको अलग नहीं रहता, सबका सेम रहता। ठीक है, भाई यहाँ तक रिकॉर्डिंग तो स्टॉप सही करी है, ना? लेकिन अगर ये हाँ बोलेंगे, रिकॉर्डिंग अगर स्टॉप इन हो केस अगर ये बोलेंगे गई। अगर कि अगर बेस्ट अगर ओएस अगर इंस्टॉल करना है तो आपकी नजर में कौन सा ओएस है, लाइक जैसा कि विंडोज 8 सही रहेगा या विंडोज 7 सही रहेगा? को इन कैसा केस भी कर अगर सकते हैं भाई, कंट्रोल करना है तो VMware में करे तो जरा मेरे को मेरे तो स्लो दिखता, कभी कभी लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है तो VMware में करे तो स्पीड हो जाता हो। कभी कभी क्या करते हैं लोग, इंस्टॉलेशन करने वाले, जहाँ पे मैं जो एड्रेस बोला था आप लोगों को, कार्तिक कुछ है ना इंस्टॉलेशन वाला, वहाँ पे उन्हें जी ड्यूअल जी OS, मतलब आपका पुराना OS डिस्टर्ब नहीं करता उन्हें, और एक नया OS डालता उन्हें, कोई सा पैरेटेड डाल के उसमें SAP डाल के देता, वो जरा लॉग इन करने जरा इजी होता, क्लिक करते लॉग इन हो जाता, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं रहती। ये VMware के नखरे रहते, जरा VMware ओपन करो पहले, VMware ओपन करने के बाद वो मैनेजमेंट कंसोल ओपन करो, वो बटना पूरे ग्रीन होने तक वेट करो, एक 10 मिनट लगता है हमेशा आपको ऐसे भी ओपन करने। तो उसके पास जिसके पास आप जा रही, कौन सा स्पीडेस्ट वे है उसके पास करा लो। मैं जहाँ पे गया उन्हें जो करा स्पीडेस्ट वे है, 300 रुपये लिया उन्हें, इंस्टॉल करके दिया। तो VMware से कर रहे हैं तो VMware से भी कर सकते हैं, VMware जो यूज कर रहे हैं स्पीड दिख रहा है आप लोगों को, मैं जैसा कर रहा हूँ या स्लो है? जो लोग VMware से लिए जरा वो बोल सकते हैं। VMware से स्पीड है असगर भाई। अच्छा स्पीड है तो VMware भी यूज कर सकते हैं आप लोग। वो डिपेंड करता है शायद होगा इंटरनेट स्पीड और इस इंटरनेट स्पीड कॉन्फ़िगरेशन। पे नहीं, आपका OS और रैम क्या बोलते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे रहता है। आपका कौन सा प्रोसेसर है, Core i3 है?
मेरा i7 है। अच्छा i7 में स्पीड ही रहता है VMware में। मेरा एक तो- मेन क्वेश्चन है सर, मेरा एक मेन क्वेश्चन है, अब जैसा जी। ये SAP इंस्टॉल कर लिए ना, SAP इंस्टॉल करके एप्लीकेशन रन हो रहा, इसके लिए इंटरनेट भी जरूरी है? इंटरनेट की जरूरत नहीं है भाई SAP के लिए। ओके, प्रैक्टिस के लिए SAP इंटरनेट की जरूरत नहीं। ओनली रियल टाइम सिनेरियो, मतलब रियल टाइम पे रियल वो टाइम कुछ भी जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत नहीं है। अच्छा कभी भी अगर जरूरत अगर भाई, जी। अभी ये जो प्रैक्टिस अपन करेंगे, अगर प्रॉब्लम्स वगैरह आए तो इसके स्क्रीनशॉट्स लेके आपसे मतलब कि एनीडेस्क से शेयर करना पड़ेगा। नहीं भाई व्हाट्सएप ग्रुप अपना जो है ना, प्रॉब्लम किसी को आ रहा है SAP याद रखो, वो ग्रुप में डालना पहले। तो आप इंटरनली जो है सॉल्व करने की कोशिश करना। जब आप लोग समझ में नहीं आ रहा तो सब लोगों को वही सेम कॉमन प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को भाई प्रॉब्लम आप लोग कहीं को आ रहा, ठीक है। नॉर्मली सिली चीजें ना रहते, कभी भी एरर्स नहीं आते, अगर एरर आए तो सिली रहता, और बाजू वाला ऑलरेडी करके रहता वो एरर क्या आ रहा बोल के। और एक चीज क्या है, SAP के अंदर दो चीजें हैं भाई, एरर्स डेफिनेटली आते रहते एवरी डे टू डे में। जैसा मेरे को कंट्री कोड मेंटेन कर रहा था, कंट्री कोड नहीं दिखा रहा था इंडिया का, वैसे कुछ भी एरर्स आ रहे हैं तो वो एरर को कॉपी करना नीचे और गूगल में मारना, वहां पे दिखाता उन्हें ये कहीं को आ रहा है एरर आपको, अरे फलाना जगह आप गलती करें, तो आप बैक जाके वो गलती रेक्टिफाई कर लेना, वैसा एक सोल्यूशन है। दूसरा क्या है, वैसे भी आपको गूगल में कुछ भी सोल्यूशन नहीं दिख रहा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो स्क्रीनशॉट ले लेके, भाई देखो मेरे को फलाना जगह फलाना का प्लान बनाना नहीं आ रहा या नहीं मसला दिखा रहा, तो उसमें क्या करना है। कोई अगर करके है तो उसमें सोल्यूशन देते हैं आपको, कोई अगर नहीं है, किसी को भी नहीं आ रहा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इमीडिएटली वो चीज का सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है ना। अच्छी बात है, ठीक है। चलो ओके चलो फिर रिमेनिंग जो भी चीजें इंशाल्लाह कल अपन डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।